वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स 2019-20। इन दिस वीडियो वी विल डू पार्ट 1 ऑफ 500 टॉप क्वेश्चन सीरीज। फ्रेंड्स, आज से हम 500 क्वेश्चंस की जो है एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी टॉप क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड 2019 से लेके 2020 तक, वो सारे के सारे हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। आपको पता ही है कि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच सिटी टॉप्ड इन द 5th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020? Q1 and Q2 having more than 10 lakh population. A is Nasik, B is Surat, C is Bhopal, D is Indore. Guys, guess the answer. Here the right answer is option D is the right answer, that is Indore. ठीक है। Which city topped in the 5th edition of Swachh Sarvekshan League 2020? Q1 and Q2 having more than 10 lakh population. Here the right answer is Indore. Next question is question number 2. Which metro station was renamed as Supreme Court Metro Station by the committee headed by Manish Sisodia? Here A is Punjabi Bagh Best Metro Station, B is Janakpuri East Metro Station, C is Rajiv Chowk Metro Station, D is Pragati Maidan Metro Station. Guys, guess the answer. Here the right answer is option D, Pragati Maidan Metro Station. This is the right answer. Next question is, which state has become the first state in India to pass a resolution scrapping the Citizenship Amendment Act CAA? Which state has become the first state in India to pass a resolution scrapping the Citizenship Amendment Act CAA? Guys, guess the answer. A is Kerala, B is Gujarat, C is Andhra Pradesh, and D is West Bengal. Here the right answer is option A, that is Kerala. इसका जो right option है वो है option A, Kerala. Question number 4 is, which state government's road transport corporation has launched the Damini helpline service to ensure the safety of women passengers? Which state government's road transport corporation has launched the Damini helpline service to ensure the safety of women passengers? Here A is Maharashtra, B is Madhya Pradesh, C is Uttar Pradesh, and D is Rajasthan. Guys, guess the answer. Here the right answer is option C, that is Uttar Pradesh. ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच इज द इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर क्विक ग्रीवियंस एंड इंक्वायरीज बाय द पैसेंजर्स ड्यूरिंग जर्नीज? व्हाट इज द इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर क्विक ग्रीवियंस एंड इंक्वायरीज बाय द पैसेंजर्स ड्यूरिंग journeys? Here A is 129, B is 139, C is 149, and D is 159. Guys, guess the answer. Here the right answer is option B, that is 139. What is the integrated helpline number launched by Indian Railways for quick grievance and inquiries by the passengers during journeys? So the answer is option B, that is 139. Question number 6 is, to boost which type of sari production? To boost which type of sari production Khadi and Village Industries Commission, that is KVIC, has opened its first silk processing plant in Gujarat? कौन सी साड़ी की प्रोडक्शन के लिए खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, दैट इज KVIC, ने
ओपन किया है इसका पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट गुजरात में। सो हेयर ए इज बैंदेज साड़ीज। कौन सी? बैंदेज साड़ीज। बी इज बालूचारी साड़ीज एंड सी इज टेंट साड़ीज। डी इज पटोला साड़ीज। फ्रेंड्स, ए इज बैंधीज साड़ीज, बी इज बालूचारी साड़ीज एंड सी इज टेंट साड़ीज, डी इज पटोला साड़ीज। हेयर द राइट आंसर इज 6 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, पटोला साड़ीज। ठीक है, पटोला साड़ीज इज द राइट ऑप्शन। पटोला जो है आप याद रखना फ्रेंड्स, पटोला नहीं बोलना है। ठीक है, जब भी साड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपने पटोला याद रखना है वहाँ पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर इनैगुरेटेड। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर इनैगुरेटेड। A is Bihar, B is West Bengal, C is Goa, D is Gujarat. Here the right answer is, guys guess the answer. Here the right answer is 7th का जो right answer है that is बिहार। ठीक है, अगर आपको इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टर्टल, ठीक है, रिहैबिलिटेशन सेंटर इनॉग्रेशन की बात चलती है तो बिहार इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट शॉर्ट लिस्ट माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान फॉर एलिजिबिलिटी अंडर द न्यू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दैट इज CAA 2019। ए इज केरला, बी इज गुजरात, सी इज उत्तर प्रदेश एंड डी इज वेस्ट बंगाल। Name the first state in India. Guys, question is important. Name the first state in India that shortlist migrants from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan for eligibility under the new Citizenship Amendment Act CAA 2019. ठीक है, A is Kerala, B is Gujarat, C is उत्तर प्रदेश, D is West Bengal. Guys, guess the answer. Question number 8. आपने जो है पिछले दिनों न्यूज़ सुनी होगी। हेयर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया पासपोर्ट इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। देखो क्वेश्चन को सुनो पहले। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट। What is the rank of Indian passport in the Henley Passport Index 2020 released by Henley and Partners? Here A is 80, B is 82, C is 84 and D is 86. ये जो Henley and Partners जो है उन्होंने जो इंडेक्स रिलीज़ किया है 2020 उसके अकॉर्डिंग जो है हमने बताना है। सो हेयर द राइट आंसर इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन आंसर इज हेयर 84। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है आपका 84। यहाँ पे 84 इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज व्हाट इज द अपर लिमिट फॉर abortions of special category women raised from 20 weeks by cabinet recently. What is the upper limit for abortions of special category women raised from 20 weeks by cabinet recently? Here A is 21 weeks. ठीक है, abortions. What is the upper limit for abortions of special category women raised from 20 weeks by cabinet recently? Here A is 20 weeks, B is 22 weeks, C is 23 and D is 24 weeks. Guys, this is 10th question. So guess the answer. Here the right answer is option D, that is 24 weeks. This is the right answer. Question number 11 is the Supreme Court of India recently permitted to introduce which animal to Indian habitat from Namibia? The Supreme Court of India
recently permitted to introduce which animal to Indian habitat from Namibia? So here A is Asiatic cheetah, B is African lion, C is African cheetah, D is African elephant. The Supreme Court of India recently permitted to introduce which animal to Indian habitat from Namibia? नामीबिया से जो है कौन सा जो एनिमल है उसे जो है क्या करने का, हाँ, इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है परमिशन ग्रांट की है। ठीक है, सो गाइस गेस द आंसर। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अफ्रीकन चीता। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम रिसेंटली साइंड ए ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट विद विच ट्राइबल ग्रुप? असम में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम रिसेंटली साइंड ए ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट विद विच ट्राइबल ग्रुप? A is Adi, B is Nishi, C is Kuki and D is Bodo. Here guys guess the answer. Here the right answer is 12 का जो आंसर है दैट इज बोडो। वहाँ पे बोडो जो थे, ठीक है, जो बोडो वहाँ पे ट्राइबल थे, इनका कुछ अपने इश्यूज थे, सो इन्होंने रिजॉल्व किया है। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज विच सिटी प्लेज होस्ट to the annual event Bharat Parv 2020 which celebrates the spirit of India? Which city plays host to the annual event Bharat Parv 2020 which celebrates the spirit of India? A is New Delhi, B is Ahmedabad, C is Jaipur and D is Mumbai. Guys guess the answer. Here the right answer is 13. Here the right answer is option A, that is New Delhi. Question number 14 is which state cabinet has approved the proposal for creating 3 capital for the state? Which state cabinet has approved the proposal for creating 3 capitals for the state? A is Arunachal Pradesh, B is Himachal Pradesh, C is Andhra Pradesh and D is Madhya Pradesh. Guess the answer. Here the right answer is, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। सो 14 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 विच इंडियन मोन्यूमेंट हैज फाउंड प्लेस इन द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस 8 वंडर्स ऑफ SCO लिस्ट? Which Indian monument has found place in the Shanghai Cooperation Organization's 8 wonders of SCO list? A is Gateway of India, B is Taj Mahal, C is Statue of Unity and D is Qutub Minar. Guys guess the answer. Here the right. Next question is question number 16. Which state has recently adopted a new logo for its legislative assembly? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। गाइस गेस द आंसर। विच स्टेट हैज रिसेंटली अडॉप्टेड ए न्यू लोगो फॉर इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली? हियर द राइट आंसर इज 16 ऑप्शन सी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट हैज रिसेंटली अडॉप्टेड ए न्यू लोगो फॉर इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। Next question is question number 17. What was the theme of the 107th edition of the Indian Science Congress, that is ISC? Indian Science Congress की जो शॉर्ट फॉर्म क्या है, ISC, for the year 2020. What was the theme of 107th edition of the Indian Science Congress ISC for the year 2020? Here A is science for shaping the future of India, B is science and technology rural development, C is science and technology urban development, D is future India science and technology. So guys guess the answer. Here the right answer is
Here the right answer is ऑप्शन बी। ये वाला जो है सही आंसर है इसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट polluted city in India according to Greenpeace India's recent report? Which is the most polluted city in India according to Greenpeace India's recent report? A is Jaharia, B is Cochin, C is Goa, D is Mumbai. Guys, guess the answer. Here the right answer is option A, that is Jaharia. This is the right answer. Next question is which state has recently made reading of preamble to constitution as a mandatory practice in schools? Which state has recently made reading of preamble to constitution as a mandatory practice in schools? A is Uttar Pradesh, B is Himachal, C is Madhya Pradesh and D is Andhra Pradesh. Guys, guess the answer. Here the right answer is ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश। 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच स्टेट हैज़ बीन लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना टू प्रोवाइड फ्री मिल्क टू चिल्ड्रन ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर्स? कौन सी स्टेट ने जो है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत, ठीक है, जो है फ्री मिल्क प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है किसको? आंगनबाड़ी सेंटर्स में बच्चों को। सो ए इज़ उत्तराखंड, बी इज़ मध्य प्रदेश, सी इज़ राजस्थान, डी इज़ उत्तर प्रदेश। गेस द आंसर। हेयर द राइट आंसर इज़ 20 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने जो है ये स्कीम जो है वो शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेट दैट वोन द बेस्ट table X awards under the states/union territories UT category. Name the state that won the best table X awards under the states/union territories UT category. Here A is Uttar Pradesh, B is Assam, C is Gujarat and D is West Bengal. Guys, guess the answer. Here the right answer is option B, that is Assam. Assam is the right answer. Question number 22 is which ministry won the best table X awards under the category different ministries and departments? Which ministry won the best table X awards under the category different ministries and departments? A is Ministry of Jal Shakti, B Ministry of Civil Aviation, C is Ministry of Defense and D आ गया Ministry of Ayush. Here the right answer is 22 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इन्होंने मोर्चा मारा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज हैज़ नेम्ड विच वर्ड एज इट्स 2019 हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज हैज़ नेम्ड विच वर्ड एज इट्स 2019 हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर? ए इज़ नारी शक्ति, बी इज़ कानून, सी इज़ संविधान एंड डी इज़ आधार। हेयर द राइट आंसर इज 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज संविधान। ठीक है। ये जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसने 2019 में वर्ड ऑफ द ईयर है ये। ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट with the aim of providing a meal to the poor for ₹10. गरीब लोगों को 10 रुपये में भोजन की जो स्कीम है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उस स्कीम का नाम पूछा गया है। ए इज़ शिव, उसके बाद में है शेतकारी, बी इज़ शिव फूड, सी इज़ शिव भोजन एंड डी इज़ शिव बक। Here the right answer is 24 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज शिव भोजन।
ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें 10 रुपये में गरीबों को खाना दिया जाता है। इस जो स्कीम का नाम है शिव भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। विच कंट्री विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट 2022 न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर? विच कंट्री विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर? जो 2022 में न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर लगने वाला है, उसमें कौन सी कंट्री जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर होगी? ए इज़ मालदीव्स, बी इज़ फ्रांस, सी इज़ इंडिया, डी इज़ जापान। हेयर द राइट आंसर इज़ 25 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ फ्रांस। इसका राइट आंसर क्या है? फ्रांस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। So friends, today we have done 25 most important questions of this topic. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Thanks for watching this video. Prepare bell, perform bell. Friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel, press the bell icon to get our latest videos. और फ्रेंड्स एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो है JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से जो टॉपिक हैं कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले आता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, ये जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस 30 मार्क्स का हमने 100% कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। ये भी हमने जो है 100% कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। कंप्यूटर का भी मिल जाएगा, जनरल नॉलेज का भी मिल जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। फ्रेंड्स, सारे के सारे जो टॉपिक हैं आपको हमने ये भी 100% कंप्लीट कर लिया है। आपने अगर देख लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है साइंस का जो है हमने एक बार कंप्लीट कर लिया है सारे के सारे टॉपिक, बट दूसरी बार फिर जो है हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो है आपने अगर प्रैक्टिस सेट जो है करने हैं तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट भी हमने जो है इसमें डाले हैं और डेली जो है रूटीन बेसिस पे 1 या 2 प्रैक्टिस सेट हम डाल रहे हैं, आप जो है देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप जो है प्रिपेयर करो अपने आप को, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, वी विल हेल्प ईच अदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।